Hello everyone. Hi Bacho, how are you guys? Welcome to the session everybody. So today we are going to do the next topic of reasoning ability everybody. Am I audible to you? आवाज आ रही है बच्चों? Okay guys, good evening guys. Very good evening to all of you. Okay. So guys, in the chapter 4 of complete course of reasoning ability, I will be taking the next topic which is input output. Okay. This is a very important topic, and this is one of that topic of reasoning ability. You will be finding the question from this topic in Snap. IIFT definitely will ask a question of input output. Maharashtra CT से में भी input output के previous year papers में काफी questions आए हैं. CMAT के अंदर भी आते हैं बच्चों, NMAT में भी आते हैं. Right? So this is basically a topic which you will find in almost every other in every OMET exam, guys. Right? Right, bachcho. So we are gonna start with this. Yes, 4 to 5 questions. एक set के अंदर 4 to 5 questions होते हैं, right? And I'm going to tell you the shortcut method of solving the question, right? So this is a new method, right? It's called as a ranking method. If you learn this method of solving the input output question, then you will be able to solve this type of question within 2 to 3 minutes. Okay, 2 से 3 मिनट के अंदर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो बच्चों, राइट? कोई बात नहीं. I will be telling you some more shortcut methods to solve the set, right? यस, पैटर्न देखना होता है. सो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? This will be the standard definition, standard instructions you will be coming across whenever you will be solving a question of input output. क्या रहता है बच्चों इसके अंदर? It says that when a word and number arrangement machine is given an input, the line of the words and number, it arranges them following a particular rule. It says कि आपने अगर नंबर और वर्ड्स का कोई कॉम्बिनेशन एक मशीन के अंदर डाला, and that machine rearranges all those numbers and the words following some rule, right? And those rules is something that you have to find it out कि किस rule के basis पे आपके numbers और arrangement के combination का rearrangement हो रहा है. Once you find out the rule of that rearrangement, you have to apply the rule of rearrangement in the another input, and you have to answer the questions accordingly, right? For example, this is one of the basic example to make you understand the input output question. एक मशीन आपको दी है जिसके अंदर आपने ये वर्ड्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन डाला. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स एंड नंबर, राइट? सेंटेंस ओवरऑल कुछ मीनिंगफुल हो भी सकता है एंड इट कैन बी नॉन मीनिंगफुल आल्सो, राइट? कोई मीनिंग नहीं हो ऐसा भी हो सकता है. For example, this is just a combination of words and numbers. Girl, orange, 34, 59 sides, 75 power 20, right? ये input है बच्चों, right? So following the set of rules, following some set of rules, this machine is rearranging this whole data. अब step 1 के अंदर observe करो जो input आपने डाला था, what is happening in step 1? Tell me what change is happening in step 1. What is happening guys? Tell me step 1 के अंदर क्या हो रहा है, right? ये changes देख के आपको रूल्स फाइंड आउट करना है बच्चों. इट्स काइंड ऑफ कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन यू कैन से, राइट? बिकॉज इसमें भी हम रूल्स फाइंड आउट करते थे. व्हाट इज हैपनिंग इज फर्स्ट स्टेप के अंदर 28 एज अ नंबर इज कमिंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन, राइट? सो 28 जो कि लास्ट में 28 was at the last position, but it now has been rearranged to the first position. Is there any other change happening? कोई और चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. Now, if you look at the number 2, step 2 के अंदर देखो, the word S, side, right? The word side has been arranged, right? Has been repositioned to the second position after 28, and rest of the letter are kept same, right? Step 2 से step 3 में जा रहे हो, then you see that the number 34 has been moved to the first position. When you're moving from step 3 to step 4, then you see that the word power is taken to the position after 34. So basically what you're doing, right? Now can you observe the pattern? कि सबसे पहले आपने नंबर 28 को फर्स्ट पोजीशन पे लेके गए, राइट? सेकंड स्टेप के अंदर the word which is starting with S has been taken to the position after 28. Then the next
number 34 has been taken to the third position. Then the word starting with the letter P has been taken to the fourth position, and so on. So can I say that this machine is basically arranging the numbers and the letters in alternative steps? Can I say that? कि first step के अंदर, step 1 के अंदर, number, so smallest number has been taken, right? So ultimately, finally, if you look at the step number 7, you will see that all numbers have been arranged in the increasing order. सारे numbers को आपने increasing order में arrange कर दिया, right? और अगर आप लेटर्स की बात करो तो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स का जो पहला जो लेटर है, आप देखो सारा डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है कि नहीं है? एस के बाद पी के बाद ओ के बाद जी. So here you can observe the pattern that the numbers are supposed to be arranged in the increasing orders. Numbers को आपने increasing order में arrange करना है और letters को आपने decreasing order में arrange करना है. Am I did you get this basic concept, guys? Numbers are supposed to be arranged in increasing order and letters are supposed to be arranged in the decreasing order, right? And first step के अंदर, step 1 के अंदर number, smallest number has to be taken to the left hand side. Then step 2 के अंदर largest letter, right? The number which having the highest alphanumeric value, the word जिसका फर्स्ट अल्फाबेट का अल्फान्यूमेरिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, उस वैल्यू को आपने राइट लेफ्ट साइड में अरेंज करना है बच्चों. यस और नो? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? दैट्स अ पैटर्न. वंस यू ऑब्जर्व द पैटर्न, राइट, यू हैव टू अप्लाई दिस इन द क्वेश्चन, गाइस. आपको पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद एज इट इज ये पैटर्न को क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर. वेरी सिंपल एंड इजी. ओके, हमेशा इनपुट का अरेंजमेंट ऐसे ही होगा क्या? नो, किसी भी तरह से हो सकता है. योर जॉब इज टू फाइंड आउट द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स एंड नंबर्स. जिस रूल्स के बेसिस पे नंबर्स और वर्ड्स का अरेंजमेंट हो रहा है, वो रूल को डी कोड करना है आपको बेसिकली. सो डी कोड द रूल बाय लुकिंग एट द एग्जाम्पल गिवन. डी कोड द रूल. वंस यू डी कोड द रूल्स, राइट, you have to apply those rules in the given input. This is how you are supposed to solve input output question. अच्छा, तो हर क्वेश्चन में इनपुट अगर चेंज हो जाएगा तो सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे एंड देन वी आर सपोज्ड टू आंसर. यस, this has to be the logical way. Now, as per that rule, question says, now as per the rules followed in the above steps, answer the given questions based on the following input. अब हमें एक नया इनपुट दिया 85 1 sort and 36 53 about 48. Now, based on the rules that were followed in the given instructions, question says how many steps will be required to complete the arrangement of the given. अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेगा? What will you do? What will you do to solve the question? आप इसमें पहले स्टेप 1 लिखोगे, स्टेप 2 लिखोगे, स्टेप 3 लिखोगे, फिर स्टेप 4 लिखोगे, देन यू राइट डाउन स्टेप 5 एंड सो ऑन, एंड यू विल सी कि फाइनली किस स्टेप में जाके अरेंजमेंट हो रहा है. टेल मी गाइस, राइट, एंड सो ऑन, राइट. So it will take a lot of time for you to solve. Yes or no? I'll tell you the alternative way to solve the question. आप एक ही मिनट के अंदर, 1 मिनट तो ज्यादा बोल दिया, 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो इफ यू फॉलो दिस रूल. ओके, वो रूल क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, बट फर्स्ट वी विल फॉलो विद द नॉर्मल, फर्स्ट विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन विद द नॉर्मल अप्रोच. बताओ बच्चों, स्टेप 1 के अंदर सबसे छोटा लेटर अरेंज होगा. यस और नो? इसमें आप नंबर्स को पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो. नंबर्स में सबसे छोटा नंबर है 36, देन 48, देन वी हैव 53 एंड देन वी हैव 85. So सबसे smallest number has to be taken on the first step, right? 36 को आप सबसे पहले left side position पे लेके जाओगे, and rest of the numbers in the words has to be written as it is, right? जो input में दिया है as it is, बाकी सारे numbers को आपको लिख देना है. Everybody clear with this? This is our step 1. Step 2 के अंदर क्या करोगे? 36 के बाद सबसे सबसे बड़े वाला अल्फाबेट कौन सा है? Which one is the alphabet having the largest alphanumeric value? अब देखो इसके अंदर एस इज द नंबर, राइट. एस सबसे लार्जेस्ट अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू पे होगा, फिर उसके बाद ओ आएगा, यस और नो, फिर ई आएगा एंड देन ए आएगा. यस और नो? तो सेकंड स्टेप के अंदर आप एस को आगे लेके आओगे, बाकी सारे नंबर्स को एज इट इज अरेंज करोगे. यस और नो? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? यस और नो? नाउ व्हाट विल हैपन इन स्टेप 3? स्टेप 3 के अंदर क्या करना है? स्टेप 3 के अंदर आप 48 को आगे लेके आओगे, राइट. सो यू विल टेक द 48 इन फ्रंट ऑफ इट, राइट. 48 को लिया, बाकी एज इट इज सभी नंबर्स का अरेंजमेंट एज इट इज कर दो, राइट. व्हाट विल हैपन इन स्टेप 4? स्टेप 4 के अंदर आप लेटर ओ को लेके आओगे. यस और नो? 36 एस 48, फिर आपने ओ को आगे ले आए, राइट. ओके, ओ को आगे लेके आए
एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स हैज टू बी अरेंज एज इट इज. बाकी किसी भी नंबर और अल्फाबेट को टच नहीं करना है आपको. स्टेप 5 में आप क्या करोगे, 53 को आगे लेके आओगे, राइट. 53 हैज टू बी टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नाउ. 36 S, 48 O, and then 53, right? And rest of the numbers and alphabets has to be written as it is, right? Step 5 हो गया हमारा. अब what will happen in step 6 guys? Tell me what will happen in step 6? Step 6 में आप किसको लेके आओगे? 53 के बाद now you will be taking the letter E, right? Letter E को आगे लेके आओगे. 36 S, 48 O, 53 E आगे आएगा, then 85 and then A. Just tell me now, सारे numbers increasing order में arrange हो गए, alphabet सब decreasing order में arrange हो गया. Do I need to go to step 7? Do I need to go to step 7 guys? Tell me. अभी मेरे को step 7 में जाने की जरूरत है क्या? नहीं. So can I say 6 is my right answer? Everybody clear with this? So 6 step is the final right answer. Right everybody? And the problem will be if you're solving this question in these OMETs exam, right? TISS में भी हो सकता है ये पेपर क्वेश्चन. TISS में भी मैंने देखा इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, right? एंड NMAT में तो डेफिनेटली आपको शायद ये मॉक पेपर्स में भी मिलेगा और पेपर फाइनल पेपर में भी आ सकता है, राइट. नाउ इफ एग्जामिनर चेंज द इनपुट ऑफ एवरी क्वेश्चन, अब ये सेट में क्वेश्चन आता है, एक इनपुट आउटपुट के सेट में जनरली 5 क्वेश्चंस आते हैं. इफ एग्जामिनर गिव यू a different input in every question, then it becomes very difficult to answer. Yes or no? Now I'm going to tell you a method जिसमें आप within one line you will be able to understand, you will be able to find out the answer to the question guys, right? सबसे पहले ये बताओ, is this part clear to everybody? ये जो मेथड था, जो नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल थ्योरेटिकल मेथड जो है, ये वाला मेथड सबको क्लियर हो गया, इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर, राइट और नो? ओके. नाउ द मेथड दैट I have designed, right, to answer this question is called as a ranking method. और रैंकिंग मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, जो एलिमेंट फर्स्ट स्टेप में मूव करेगा, यू रैंक दैट एलिमेंट एज रैंक 1. एंड ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि जब आप इसके डेटा को अरेंज कर रहे हो, इस मशीन के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उसमें जो डेटा को अरेंजमेंट करना है, यू सी दैट एलिमेंट्स आर सपोज्ड टू बी मूव्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. यस और नो? सारे के सारे एलिमेंट्स को आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है, राइट. नाउ टेल मी गाइस, इस इनपुट के अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट होगा जो मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, वो 36 होगा. तो मैं क्या करूंगा, 36 को रैंक 1 दे दूंगा, राइट. टेल मी गाइस, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट दैट आई एम सपोज्ड टू मूव? नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है दैट इज S. तो सॉर्ट जो है वो सेकंड स्टेप में होगा, तो आई विल रैंक दिस एलिमेंट एज रैंक 2. ओके. थर्ड के अंदर 53 जाएगा, तो इसको मैं थर्ड रैंक दे दूंगा. फोर्थ के अंदर O जाएगा, तो इसको मैं फोर्थ रैंक दे दूंगा. फिफ्थ के अंदर कौन सा जाएगा, सॉरी 48 जाएगा सेकंड के अंदर, राइट. 48 जाएगा इसके में ना, एक मिनट, फर्स्ट इसको दिया, सेकंड इसको दिया, थर्ड पे 48 जाएगा. थर्ड पे 48 जाएगा, तो 48 को थर्ड दे दिया. फोर्थ पे 1 जाएगा, तो फोर्थ 1 को फोर्थ दे दिया. नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में कौन मूव करेगा, 53 मूव करेगा, तो इसको 5 रैंक दे दिया. नेक्स्ट लेटर E जाएगा, तो उसको 6 रैंक दे दिया. अब इसके बाद का जो अरेंजमेंट है, 36 के बाद E के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है, राइट, वो होना चाहिए 85. But do you see that when I'm arranging the data, all the letters are supposed to be moved on the left hand side. सारे के सारे लेटर जो हैं, राइट, जो एलिमेंट्स हैं, उनको आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे हो. Keep this in mind. Whenever you are giving a new rank to the element, you need to make sure कि एक एलिमेंट को नया रैंक तभी मिल सकता है if there are some elements on the left hand side of that element which are unranked, जिनको रैंकिंग अभी तक नहीं दी है. 85 के लेफ्ट में कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिसको रैंकिंग नहीं मिला अभी तक? Do we have any element which is on the left hand side of 85 and that element have not got any ranked yet? Do we have any element? No. So that means 85 automatically is coming at its own position. Yes or no? So 85 को आपको 7th रैंक नहीं देना है. This will be called as a auto-filling element. 85 automatically come at its own position. This will be called as 6A. Everybody clear with this? Yes or no? तो आपने देखा था जब हम थ्योरी वाइज सारे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 जब हम लिख रहे थे, तो हमने 85 और अबाउट को मूव नहीं किया था. उसका रीजन क्या था? बिकॉज सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी उनके लेफ्ट में जा चुके हैं. All the elements already have moved to the left of these elements. So 85 is
at its own position already. So I don't need a step to move 85. मुझे एक step नया count करने की जरूरत नहीं है to move 85 towards the left, right? Because आप देखो ये सारे elements already इसके left में जा चुके हैं already. So 85 तो अपनी position पे ही बैठा है, उसके लिए मेरे को step count करने की जरूरत नहीं है. Now if you look at the next word about, क्या about के left hand side पे कोई ऐसा एलिमेंट है विच इज अनरैंक्ड, जिसको अभी तक रैंकिंग नहीं मिला? नहीं, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है. सो इसको आप 6B का रैंकिंग दोगे, मतलब ये 6 स्टेप के बाद ऑटोमेटिक फिलिंग में आ जाएगा. यस और नो? इसको भी आप 6A या 6B दे सकते हो. 6 जो मतलब अगर सफिक्स में आपने कुछ लिखा हुआ है तो यू जस्ट नीड टू अज्यूम इट कि इसका ऑटो फिलिंग हो रहा है. सो फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी स्टेप 6. 6 स्टेप्स के अंदर पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा. And this way I do not need to write down every step, है ना? इसके अंदर मुझे क्या कर रहा हूं, मैं पूरे स्टेप्स को लिख नहीं रहा, राइट? एक रैंकिंग करने से ही मेरे पूरे सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? यस और नो? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट इन इट? क्लियर हो गया? रैंकिंग पार्ट इज क्लियर. नाउ लुक एट इट. व्हाट विल बी द फोर्थ स्टेप? अब क्वेश्चन बोला कि इसका मेरे को फोर्थ स्टेप निकाल के बताओ. फोर्थ स्टेप के अंदर कितने एलिमेंट्स का ऑटो फिलिंग हो जाएगा, कितने एलिमेंट्स का फिलिंग, कितने एलिमेंट्स को रैंक हो जाएगा? 4 एलिमेंट्स को रैंक होना चाहिए. तो फोर्थ स्टेप अगर मुझे लिखना है बच्चों, फोर्थ स्टेप, इफ आई हैव टू डायरेक्टली राइट डाउन द फोर्थ स्टेप ऑफ दिस इनपुट, तो मैं पहले रैंक 1 वाले एलिमेंट को डालूंगा, देन रैंक 2 वाले को, रैंक 3 कौन है हमारा 48, रैंक 4 कौन है 1, दैट्स इट. 4 स्टेप के इन एवरी स्टेप 1 एलिमेंट इज मूविंग. तो 4 स्टेप्स के अंदर 4 एलिमेंट का अरेंजमेंट होगा. तो 4 एलिमेंट का अरेंजमेंट किया. नाउ आई विल कीप रेस्ट ऑफ द एलिमेंट एज इट इज एट इट्स ऑन पोजीशन, राइट? बाकी सारे एलिमेंट्स को एज इट इज अपनी पोजीशन पे रहने दो, और ये आपका इनपुट, ये आपका 4th स्टेप आ जाएगा. इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? डू लेट मी नो. दैट्स द 4th स्टेप, राइट? अब देख लो, जो थ्योरेटिकली आपने 4th स्टेप बनाया, क्या वो इससे मैच कर रहा है? Yes or no? I'm sure everybody must have made this in their own notebook, right? आपने जो नोटबुक में 4th स्टेप लिखा वो यही है ना? तो 4th स्टेप में 4 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करना है, तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 को आगे लिखो, बाकी किसी एलिमेंट को टच नहीं करना, उसको एज इट इज लिख दो, राइट? ये आपका 4th स्टेप आ गया. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? अब अगले में क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द 4th स्टेप. अच्छा, ये तो हो गया ना. हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर बिटवीन 1 and 36 इन द 4th स्टेप? 1 और 36 के अंदर 4th स्टेप में कितने एलिमेंट होंगे? ये भी बहुत इजी है. या तो 4th स्टेप लिख लो, या फिर आप देख सकते हो कि 4th स्टेप तक 36 का रैंक है 1 और 1 का रैंक है 4. तो बताओ बच्चों, रैंक 1 और रैंक 4 के बीच में कितने एलिमेंट होंगे? 2 ही तो होंगे, रैंक 2 और रैंक 3. यस और नो? तो कैन आई स्ट्रेट अवे आंसर द क्वेश्चन? स्टेप 4 के अंदर 36 और 1 के अंदर there will be 2 elements. Everybody clear with this? Answer to the question will be 2. डन बच्चों? रैंकिंग अगर आपने अपने सामने किया हुआ है तो आप इजीली क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. Which element will be the 4th from the left hand in the 4th step? लेफ्ट हैंड से अगर मेरे को 4th पोजीशन पे एलिमेंट देखना है तो 4th स्टेप के अंदर तो वो रैंक 4 वाला होगा. और आपने रैंक 4 किसको दिया हुआ है? आप देख लीजिए, रैंक 4 आपने किसको दिया? रैंक 4 इज गिवन टू द लेटर 1, वर्ड 1. So 4th element from the left hand side in the 4th step will be equal to 1. Okay, so this is how you guys can answer all these questions, right everybody? Did you get it? कैसे रैंकिंग करना है? So observe करना है आपको how the elements are moving. Elements किस तरफ मूव कर रहे हैं, on which side the elements are moving. अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं, देन यू हैव टू मेक श्योर कि नया रैंक तभी देना है आपको किसी भी एलिमेंट को इफ देयर आर अनरैंक्ड एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड और लेटर और नंबर, राइट? ठीक है, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ दिस गाइस, राइट? वी विल ऑब्जर्व द पैटर्न हियर. लुक एट इट. व्हाट डज इट सेज? When a word and number arrangement machine is given an input line of words and number, it arranges them following a particular rule. Standard instructions बिल्कुल सेम ही होंगी कि आपने कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कर रहे हो एंड यू आर मूविंग द एलिमेंट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, जो भी है, राइट? जरूरी नहीं होगा एवरी टाइम इट विल बी मूविंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इट माइट बी मूविंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ऐसा भी हो सकता है सम ऑफ द एलिमेंट्स आर मूविंग ऑन द लेफ्ट, सम ऑफ देम आर मूविंग ऑन द राइट. सो हर टाइप के क्वेश्चंस हम कर लेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट. इनपुट आउटपुट में इनफैक्ट क्वेश्चंस मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड भी हो सकते हैं जिसमें रैंकिंग वाला शायद काम नहीं करे. ओके, बट डू नॉट वरी अबाउट इट, राइट? अगर नंबर्स
और वर्ड्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं तो रैंकिंग मेथड से फास्ट मेथड नहीं बन सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, राइट? ठीक है बच्चों, लुक एट इट नाउ। अब देखो ये इनपुट है मेरा बच्चों, दिस इज माय इनपुट, राइट? लुक एट दिस इनपुट, राइट? इसमें वर्ड्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। व्हाट इज हैपनिंग इन स्टेप वन? स्टेप वन के अंदर आपने क्या किया? यू हैव इंजीनियर को सबसे पहले रखा हुआ है आपने, एंड देन यू हैव टेकन द वर्ड एफ, राइट? दो एलिमेंट्स आगे आए, ई और एफ को आपने आगे लिया, राइट? हाँ कोई बात नहीं, वैसे एलिमेंट्स वैसे क्वेश्चंस भी मैं करूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, राइट? वी विल बी टेकिंग इनपुट आउटपुट क्वेश्चन जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड होता है, राइट? किसी भी टाइप का आ सकता है। दिस इज जस्ट वन टाइप जिसमें नंबर्स और वर्ड्स का अरेंजमेंट हो रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसमें रैंकिंग मेथड परफेक्टली काम करता है, राइट? नाउ इफ यू लुक एट द स्टेप नंबर 2 गाइस, स्टेप नंबर 2 में देखो बच्चों, राइट? स्टेप 2 में क्या हो रहा है बच्चों? दो नंबर्स 89 और 61 को आपने आगे लिया, राइट? फिर स्टेप 3 में क्या? फिर से दो वर्ड्स आए, जंप और मार्क, राइट? जंप और मार्क। फोर्थ स्टेप में दो नंबर्स आ गए, राइट? अब लास्ट स्टेप को देखो, फाइनल जो अरेंजमेंट करना है। अब देखो ये जो वर्ड है इसका ई लेटर है, ये एफ, 89, 61, जे, एम, 52, 41, फिर आर, फिर एस, फिर 36, 30। गाइस टेल मी, नंबर्स अल्टीमेटली लास्ट स्टेप के अंदर नंबर्स को फाइनली आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है या डिक्रीजिंग? बताओ बच्चों, look at the last step and tell me, numbers are arranged in increasing or decreasing? It has been arranged in decreasing order बच्चों, decreasing order है ना, decreasing order है ना, right? और अल्फाबेट की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द अल्फाबेट, अल्फाबेट का क्या हो रहा है बच्चों? अल्फाबेट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? अल्फाबेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, राइट? दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सो सबसे पहले आप डी कोड कर लो, रूल डी कोड करना है आपको, राइट? नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अल्फाबेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। Okay, and how many elements are supposed to be moved in one step? Step वन के अंदर, स्टेप वन के अंदर अल्फाबेट्स मूव होंगे, स्टेप टू के अंदर नंबर्स मूव होंगे, और ये ऑल्टरनेटिव चलता रहेगा, राइट? एंड in one step how many elements are supposed to be moved? In one step how many element? Two elements are supposed to be, यही है ना? ये है हमारा बच्चों क्वेश्चन, राइट एवरीबॉडी? अब इसके बेसिस पे these are the rules of arrangement. Yes, these are the rules of arrangement. Now based on these rules I am supposed to answer the question कि अगर मेरा ये input रहेगा तो which of the following term exactly comes between 49 and enough in step 3? 49 और enough के बीच में step 3 में कौन सा एलिमेंट है? step 3 तक जाना है ना बच्चों मेरे को? चलो हम रैंकिंग करेंगे इसमें, राइट? We will do the ranking on once I know the rules, we will do the ranking. अच्छा, step 1, step 2, step 3 लिखने की जरूरत नहीं है. What we can straight away do is, अगर पहले क्वेश्चन को मुझे आंसर करना है तो मुझे स्टेप 3 तक जाना पड़ेगा। स्टेप 1 के सारे एलिमेंट लिखो, स्टेप 2 में लिखो, फिर स्टेप 3 में लिखो, एंड देन आई लुक एट द आंसर। However, if I follow the ranking method, I know that सबसे पहले मुझे दो अल्फाबेट्स को उठाना है बच्चों, राइट? कौन से दो अल्फाबेट्स जो सबसे लीस्ट जिनका अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू सबसे लीस्ट हो, तो वो कौन से होंगे? ए और बी। तो कैन आई से कि 1A के अंदर ये एलिमेंट मूव कर, अब बिकॉज एक स्टेप में दो एलिमेंट मूव कर रहे हैं तो वन स्टेप में जो दो एलिमेंट मूव करेंगे आई विल रैंक देम एज 1A एंड 1B, क्योंकि दो एलिमेंट्स को मूव करना है ना। एक और एलिमेंट कौन सा मूव होगा? 1B, वो ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे बैठा है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर A और B वाले नंबर चले जाएंगे। यस और नो? सेकंड वाले में आपको नंबर्स को अरेंज करना है। दो हाईएस्ट वैल्यू वाले नंबर्स कौन से हैं जिनका वैल्यू सबसे हाईएस्ट है? 81 एंड 47। यस और नो? तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 81 विल बी 2A। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? एंड और कौन सा? और बताओ बच्चों। 81 के साथ, अच्छा ए दो बार है, आई एम सॉरी ए दो बार है, राइट। ए को दो बार दिया हुआ है, तो 1B का जो जाएगा बच्चों वो AL को जाएगा। ऐसा नो? ओके, राइट, करेक्ट। और एंड यू आल्सो नीड टू बी केयरफुल कि अगर दो वर्ड्स का स्टार्टिंग का अल्फाबेट सेम है तो आपको सेकंड अल्फाबेट को भी कंपेयर करना है। तो ये 1A में जाएगा बच्चों और ये 1B में जाएगा, बिकॉज AL पहले आएगा और AN बाद में आएगा।
बेसिकली आप इसको डिक्शनरी ऑर्डर में आप अरेंज कर रहे हो, यस और नो। 1A 1B हो गया, फिर 2A जाएगा 81 को बचो, और दूसरा सबसे लार्जेस्ट 81 के बाद सेकंड लार्जेस्ट इज 49, तो कैन आई से 2B will be given to 49. Everybody clear with this? 2A 2B समझ में आ गया? Now tell me guys, थर्ड किसको जाएगा? A के बाद अगला आएगा 3A जो B से शुरू होगा, am I right? और थर्ड स्टेप के अंदर एक और एलिमेंट B के बाद सेकंड नेक्स्ट अल्फाबेट इज विच ABCDE वाला जाएगा, आई एम श्योर, राइट? सो दिस विल बी 3B एवरीवन। दैट्स इट गाइस, इज इट क्लियर? अब ये रैंकिंग हमने दे दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 49 और इनफ के बीच में बताओ स्टेप 3 में क्या आएगा। देखो जो 49 का रैंकिंग है 2B और इनफ का रैंकिंग है, इनफ का रैंकिंग है 3B। तो टेल मी गाइस 2B और 3B के बीच में जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा होगा? 3A होगा, yes or no? And 3A is given to bond, right? So which element is there, right? Which of the following term exactly come between 49 and enough in step 3? The answer will be bond. Can I say this? I don't need to write down step 1, step 2 and step 3 to answer the question. I can simply follow the pattern and answer the question. Yes everybody? Did you get it? समझ में आया कि नहीं? बोलो बच्चों, you get the logic? Look at the next question guys. How many elements are there between 25 and 16 in step 5? अब मुझे स्टेप 5 तक जाना है, ठीक है? तो 3B तक हमने रैंक कर ही रखा है। बताओ बच्चों 4A के अंदर नंबर्स को मूव करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट नंबर लार्जेस्ट जो नंबर है बच्चों दैट इज 47, तो ये 4A में जाएगा, इसकी काउंटिंग 4A में होगी। 47 के साथ नंबर जाएगा 25, तो ये जाएगा 4B के साथ, राइट? नेक्स्ट हमने ई तक रैंकिंग किया था लेटर्स में। ई के बाद कौन सा है? ABCDFGEFGHIJKLM, राइट? तो बच्चों कैन आई से दैट ये 5A में जाने वाला है और M के साथ S जाएगा 5B के अंदर। Everybody clear with this? Right? M और S will be going in 5A and 5B. राइट, पूरा ही रैंकिंग कर देते हैं। फिर 6A किसको मिलेगा? 6A will be the number 16 and 6B will be the number 11. Be clear with this? What is the question now? क्वेश्चन में पूछा है बच्चों कि स्टेप 5 में 25 और 16 के बीच में नंबर बताओ। स्टेप 5 में जब हम स्टेप 5 तक गए 25 जो है वो 4B पे है, 25 इज एट 4B, ठीक है? स्टेप 5 के अंदर हमें बताना है 25 और 16 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं। और मुझे 16 का कोई रैंकिंग हुआ नहीं होगा क्योंकि 16 का रैंक है 6A, तो 16 का कोई भी रैंकिंग नहीं हुआ होगा। Yes or no? 16 will not be ranked anywhere. Will not be ranked anywhere. 4B के बाद वो जो 5 स्टेप में 5A की भी रैंकिंग हो जाएगी, राइट? और 5B की भी रैंकिंग हो जाएगी। क्या कोई और अनरैंक्ड एलिमेंट 16 के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा है क्या? अनरैंक्ड है, वो लेफ्ट में ही रहेगा, यस और नो, राइट? तो एक अनरैंक्ड एलिमेंट भी रहेगा। तो बताओ बच्चों 25 और 16 के बीच में टोटल कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 5A वाला रहेगा, 5B वाला रहेगा और अनरैंक्ड जो है 11 वो भी उसके लेफ्ट में रहेगा, तो वो भी 25 और 16 के बीच में ही आएगा बिकॉज 25 का रैंकिंग ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में 5A 5B और अनरैंक्ड वाला जो एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट 25 और 16 के बीच में आएंगे। सो द आंसर टू द क्वेश्चन विल बी 11 गाइस। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चों? इज इट क्लियर? So there, how many elements will be there between 25 and 16? Answer will be 3. Did you get it? Answer will be 3. Yes or no? Is it done? ठीक है बच्चों? All clear? Any doubt in this? 2C क्यों करोगे यार? ऑटोमेटिक फिलिंग, दो एलिमेंट्स को लेफ्ट में मूव कर रहे हो आप, दो में से एक अपनी पोजीशन पे बैठा है और दूसरा अपनी पोजीशन पे नहीं है, मूव, तो उसके लिए क्या मेरे को देखो, हमने ऑटोमेटिक फिलिंग का वर्ड का मीनिंग क्या था? अंकुर यार, कम ऑन यार, व्हाई यू पीपल सिंपली गो फॉर रट्टाफिकेशन यार? तुम लोग क्यों हर बार रट्टे के लिए जाते हो? हैं, थोड़ा सा लॉजिक यूज कर सकते हो कि नहीं? ऑटोमेटिक फिलिंग का रीजन क्या था? व्हाट वाज द रीजन ऑफ ऑटो फिलिंग? ऑटो फिलिंग का रीजन क्या था बच्चों? व्हाट वाज द रीजन ऑफ ऑटो फिलिंग?
कि एलिमेंट अपनी पोजीशन पे ही है, उसके लिए मेरे को नया स्टेप नहीं लाना पड़ रहा है, तो उसको हम ऑटो फिलिंग बोलते हैं। ऐसा नो दैट इफ एन एलिमेंट इज ऑलरेडी एट इट्स ऑन पोजीशन, तो मेरे को नया स्टेप नहीं लाने की जरूरत नहीं है, उसमें मेरे को नया स्टेप काउंट नहीं होगा, मेरा मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे नहीं। यही होता है ना ऑटो फिलिंग, यही होता है ना इसका वर्ड का मीनिंग। लेकिन तुम लोगों को रट्टा ही मारना है, नहीं अंकुर? Auto filling is basically, meaning of the word auto filling is, if there is an element or a word which is at its on position, I don't need to move it to in that particular step. But इस particular इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस में दो एलिमेंट एक साथ मूव कर, अब एक एलिमेंट को तो मूव करना पड़ रहा है, दूसरा एलिमेंट अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ, तो क्या स्टेप स्किप हो जाएगा मेरा? विल माई स्टेप्स गेट स्किप? एक एलिमेंट को तो मूव करना पड़ेगा, स्टेप काउंटिंग में तो आएगा कि नहीं आएगा? कम ऑन यार, इतना बेसिक माइंड नहीं लगा पा रहे हो? रट्टा मत मारो, ऑटो फिलिंग वर्ड का मीनिंग समझो। ऑटो फिलिंग वर्ड मीन्स a new step is not counted because the element which was supposed to be moved is already at its on position. तुम 2C लेके आ गए अपनी मर्जी से बीच में। What is 2C? कोई मीनिंग है 2C का इसके अंदर, राइट? कि स्टेप काउंट अगर नहीं करना है मेरे को, इफ द स्टेप इज नॉट सपोज टू बी काउंटेड, देन इट वी कॉल इट ऑटो फिलिंग। अब एक एलिमेंट अपनी पोजीशन पे बैठा है, बट दूसरे एलिमेंट को मूव करना पड़ रहा है, क्या मेरा स्टेप स्किप होगा? विल माय स्टेप गेट स्किप्ड? नो। सो कैन वी कॉल इट एन ऑटो फिलिंग? नो, राइट? स्टेप स्किप नहीं हो रहा है, स्टेप तो काउंट होगा ना। इज इट क्लियर? राइट? लॉजिक से पढ़ना शुरू करो यार, राइट? कैट या ओएमएटीज क्लियर करने के लिए ना लॉजिक डेवलप करना है, लॉजिक के रट्टे नहीं मारने हैं। समझ में आ रही है बच्चों? राइट? ठीक है, लॉजिक डेवलप करना है, खुद से डेवलप करना है। एज इट इज मेरी बनाई हुई चीज को रटना नहीं है, उसके पीछे की कहानी समझनी है, उसका बेस समझना है कि ये मेथड को कैसे बनाया गया। तब देन आई वुड से कि हाँ, बच्चों का माइंड डेवलप हो रहा है, राइट? लॉजिकली डेवलप हो रहा है, लॉजिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो रही है। नहीं तुम्हें बस रूल्स बना के दे दो, रट्टा मार के आ जाओ, जैसे कि एग्जामिनर मुझसे पूछ के डालेगा क्वेश्चन, मेरी वीडियो देखेगा और यही एज इट इज क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। नहीं, लॉजिक डेवलप करना है हमें, राइट? और तीन भी एलिमेंट मूव कर रहे हो एक साथ, तो हम क्या करेंगे? उसको 1A 1B और 1C की रैंकिंग दे देंगे, राइट? इज क्लियर? समझ में आ रही है बच्चों बात? राइट? अब कोई अगर अगला क्वेश्चन मैं ऐसा दे दूं जिसमें तीन एलिमेंट एक साथ मूव कर रहे हैं, या दो एलिमेंट एक साथ मूव कर रहे हैं, एक लेफ्ट में जा रहा है एक राइट में जा रहा है, तो उसमें आपका दिमाग खुद से चलना चाहिए भी। एक एलिमेंट लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है, तो लेफ्ट वाले को 1L देते हैं, राइट वाले को 1R दे देते हैं, राइट? तब ना मैं बोलूंगा ना कि हाँ, बच्चों को बात समझ में आ गई, राइट? कि आपको मैंने एक चीज बेसिक समझाई, उसको आपने मॉडिफाई करके एक नए क्वेश्चन में अपने आप से लगा लिया, देन आई कैन से दैट यस स्टूडेंट्स आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। नहीं, राइट? वो तो करनी नहीं है ना, राइट? वो कहाँ करना है? स्पून फीडिंग की आदत हो चुकी है, राइट? एजुकेटर्स को सिर्फ व्यूज से मतलब रह गया है। नहीं, स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाते जाओ, बच्चों को खुश करते जाओ, राइट? और कंटेंट जो पढ़ा रहा है उसमें तो बच्चे कहाँ आते हैं, राइट? इन स्टेप 6, if enough and major and 11 and 49 are interchanged, बोल रहे E और M को आपने आपस में इंटरचेंज किया, 11 and 49 को आपने इंटरचेंज किया, राइट? E और M को इंटरचेंज किया, 11 and 49 को भी आपने आपस में इंटरचेंज किया। How many elements will be placed between 49 and enough now? ठीक है, तो बच्चों कैन आई से दैट 49 अगर 11 की पोजीशन पे आ जाएगा और E M की पोजीशन पे आ जाएगा, तो E और 49 में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जितने कि M और 11 के बीच में अभी हैं। Am I right or wrong? Is it clear? Because you are placing 49 at a place of 11 and you're placing E at a place of M, so the number of elements between 49 and E will now be same as the number of elements between M and 11, because इनकी पोजीशन रिप्लेस हो गई है। Yes or no? तो M और 11 में 6 स्टेप में जो एलिमेंट्स हैं वही E और 49 के बीच में रहेंगे। तो 6 स्टेप में M और 11 के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं। 6 स्टेप के अंदर M, ओके 6 स्टेप, ओके ये पूरे डेटा का अरेंजमेंट 6 स्टेप के अंदर हो रहा है। M और 11, M की रैंकिंग कितनी हुई? व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ M? M का रैंकिंग है 5A और 11 का रैंकिंग है 6B। तो बताओ, मेरे को पूरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। 5A और 6B के बीच में कितने एलिमेंट होंगे? 5B होगा और 6A आएगा, दो एलिमेंट्स होंगे, दो आंसर आ जाएगा।
Got it? Everybody clear with this or not? है ना? Answer will be 2. Got it? 5A, right? 5B or 6A will be the two elements between these two elements. You get it? Any doubt in this? Do let me know. M और 11 का रैंकिंग देखना है मेरे को क्वेश्चन को आंसर करने की, राइट? ये बात समझ में? M is 5A, 11 is 6B. 5B आएगा फिर 6A आएगा. 5B और 6A दो एलिमेंट्स आएंगे. 2 is the correct answer. What is the position of 25 in step 4 from the right hand? स्टेप 4 के अंदर 25 का मेरे को पोजीशन बताना है राइट हैंड से. तो आई जस्ट नीड टू सी कि 25 के राइट में कितने एलिमेंट्स होंगे स्टेप 4 के अंदर. ओके, स्टेप 4 25 का रैंकिंग क्या है? टेल मी व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ 25? 25 का रैंकिंग है 4B. यस और नो? राइट. तो 25 का रैंक इज 4B, राइट? 25 का रैंक इज 4B. ट्वेंटी फाइव का रैंक इज 4B. 25 के राइट में एलिमेंट्स देखते हैं. तो मुझे 25 के राइट में वही सारे एलिमेंट्स होंगे जो अनरैंक्ड होंगे. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? एम आई राइट और रॉन्ग? जितने भी एलिमेंट्स अनरैंक्ड हैं वो सारे के सारे 25 के राइट में. कैन आई से दिस? है ना? तो है ना? तो 25 के राइट में जो, क्योंकि फोर्थ स्टेप के अंदर 25 लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जा चुके हैं, राइट? तो इसके लेफ्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? ये 4B पे है तो लेफ्ट में 7 होंगे. 25 8th एलिमेंट हो गया. तो बाकी जितने बचे वो इसके राइट में होंगे. टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसके? इस स्टेप में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 12. तो 7 तो लेफ्ट में चले गए, एक 25 खुद हो गया 8. तो राइट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 25 के राइट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4. तो आंसर इज. समझ में आ रही है बच्चों बात? इज दिस क्लियर? डिड यू गेट इट? The numbers and the words are getting arranged. This is how you're supposed to move. ठीक है, एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया. इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करना, राइट? आई विल डेफिनेटली अपलोड द प्रैक्टिस मटेरियल ऑफ इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस टुडे. व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, राइट? दोनों के लिंक आपको दिए हुए हैं. अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट में नहीं बताना है, हमें बताना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 25 इन स्टेप 4 फ्रॉम द राइट हैंड. सॉरी, आई थॉट कि हमें बताना है कि 25 के राइट में कितने एलिमेंट्स हैं. 25 के राइट में 4 एलिमेंट्स होंगे. यस और नो? 25 के राइट में 4 एलिमेंट्स है. टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे. तो अगर मुझे देखना है कि उसका राइट हैंड से पोजीशन कौन सा है, राइट हैंड से पोजीशन का 5th है, राइट? सो करेक्ट, डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? थैंक यू, थैंक्स फॉर करेक्शन. पोजीशन तो 5 होगा, बिल्कुल सही बात. हाँ, मैंने आपको, आप मेरी स्टेटमेंट को सुने हो, राइट? कि 5th होगा आगे. मैंने स्टेटमेंट में ये बोला था कि 25 के राइट में 4 एलिमेंट्स होंगे. मैंने ये नहीं बोला कि 25 का लेफ्ट हैंड साइड से 4 होगा. 25 के राइट में 4 होंगे तो पोजीशन 5 होगा. बिल्कुल सही बात. ओके, इज डन? स्टेटमेंट्स तो सही बोला ना मैंने? ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन द सेशन. इनपुट आउटपुट के अभी 2 सेशंस और हम करेंगे. कल एक सेट करेंगे जिसमें एलिमेंट्स लेफ्ट और राइट दोनों साइड मूव करते हैं. थर्ड सेशन में फिर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जिससे मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो जाए. मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस वेयर स्टेप के अंदर, राइट, इन एवरी स्टेप देयर इज सम मैथमेटिकल ऑपरेशन गेटिंग अप्लाइड. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? राइट? ठीक है. ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन गाइस. टेक केयर. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस. टेक केयर. थैंक्स अ लॉट. Please do the practice, right? The content will be uploaded in the group.